Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine and fit today. Myself Jaideep Kevadia, and today we are going to discuss trigonometry function, right? In trigonometry function, before going to start, you must clear about the trigonometry that you studied in the 10th standard. In 10th standard, you studied trigonometry ratios like sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, and the relation between different trigonometry ratios. Then you also studied complementary pair, like if you want to transfer or transform sine into cos, just you have to do 90 minus theta. Some trigonometry identities of square that you studied, sin square plus cos square is equal to 1, like that. And also you study trigonometry tables, 0 degree, 30 degree, 40 degree, 45 degree, 60 and 90 degrees, right? So in case of 11th, we are going to start from very basic. Today we are going to discuss this much topics. In that topics, I have just mentioned what we are going to discuss today: measure of an angles. See, we have already, we know how to measure the angles. In 10th standard we also studied, but here we have to study it in a different way in the sense what, अभी आपको करना क्या है कि जो एंगल्स आप मेजर करते हो, जो मेजर करते हैं उसमें कौन कौन से यूनिट आता है, उसमें यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है, दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर ऑफ एन एंगल. दिस आर द टॉपिक्स आई हैव मेंशन एंड वी आर हैविंग सम प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स. Okay, so first thing, measure of an angles. Now first we must know what is angle. Angle is what we can say, it is a one kind of rotation. Rotation like what? Suppose you are having one ray. Ray, you know what is ray? One end is fixed and second one is infinite, like it is going on and that way, right? So one end is fixed, that we know what is ray actually. Now suppose it is an initial stage, we can say it is an initial state. Initial stage, or what can initial position, or whatever you can say, initial we can say position of this ray is like this. Now we are having two options, like this ray may be moving on left side or this ray may be moving on the right side. Like we cannot say left side or right side, but what we can assume, we are everything we are measuring in sense of clock. So you can say this is a rotation of anti-clockwise. हमारी जो clock हो वो कैसे rotate होती है? This way, right? It is moving on this way. We can say that direction is considered as this direction we are considering as a clockwise direction, and this is a anti-clockwise. So this ray might be moved in an anti-clockwise direction or clockwise direction. Are you getting or not? See, we are going to make you understand about the angles. What is angles? So suppose this ray may move from this position to this position, like this position, like suppose that ray like this. So this is known as a initial state, and this is, we can say, a final state, final, or we can say terminal position of this ray. So whatever rotation, degree of rotation, whatever rotation makes here, it is known as an angle. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एंगल बोलते हैं. तो ये जो हमारा रोटेशन है, वो रोटेशन कैसे हुआ? क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? तो ये हमारा रोटेशन हुआ दिस वे. दिस वे मीन्स इट इज नोन एज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एनी एंगल विल फॉर्म दैट कंसिडर एज अ पॉजिटिव एंगल. सो ये हमारा पॉजिटिव एंगल है. हमें फर्स्ट क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होता है वो हमें जानना है. Actually we know what is angle, but might be this kind of question will ask, depends on this theory. Now suppose this ray, ये जो हमारा रे है, सपोज ये रे हमारा है क्लॉकवाइज मूविंग हो रहा है. अभी हमने क्या कंसीडर किया था? एंटी क्लॉकवाइज. अभी क्या कंसीडर कर रहा है? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. तो अभी ये रे हमारा सपोज ये पोजीशन से ये पोजीशन आ रहा है, तो ये जो हमारा एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लाइक दिस. तो ये हमारा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑलवेज वी आर कंसिडरिंग थीटा इज अ नेगेटिव, एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग थीटा इज अ पॉजिटिव. So we are having two kind of angle measurement, like positive and negative. If the direction is anti-clockwise, then the angle is a positive, and if direction is a clockwise, then it is a negative angle measurement, right? So measure of angle, first we know what is angle. That way I hope that angle is clear. Now next we are having three systems of angular measurement. This topic is also important in the case of physics.
ये आपको जो टॉपिक हम अभी जो लर्न कर रहे हैं वो फिजिक्स में भी आएगा कि एंगल मेजरमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से यूनिट्स आता है, कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट। सो पहला जो हमारा सिस्टम है होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसको हम बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। और डिग्री मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है, आपको तो पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, दैट यू स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, दैट राइट और नॉट। बट एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आपको इनिशियल पॉइंट है, सपोज आपका पॉइंट है जो यहाँ पर है, आप यहाँ से क्या करते हैं, एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से एक आप रोटेशन कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या होता है, 0 से पूरा कंप्लीट होता है तो वो 360 डिग्री रोटेशन होता है। इफ वी आर कंसिडरिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वॉट एवर वी आर गोइंग टू कंसिडरिंग दैट डायरेक्शन, तो ये हमारा 360 डिग्री रोटेशन होता है, ऐसा हम बोलता है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट आता है वो हम क्या बोलते हैं कि डिग्री में मेजरमेंट आता है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये 360 डिग्री होता है, तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज वी आर हैविंग 360 डिग्री, उसको हम पार्ट करते हैं तो 360 पार्ट होता है। 360 डिग्री का 360 पार्ट होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट 1 डिग्री का हुआ, तो 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट का। मिनट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट यू टू रिमेंबर। आपको ये रिलेशन है, यूनिट कन्वर्जन का जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। ये तो आपको क्लियर है, आई एम नॉट गोइंग टू गो डिस्कस इन द डेप्थ कि ये जो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है वो आपको पता है कि भाई सर्कुलर ये जो आपका पूरा रोटेशन होता है वो 360 का होता है, तो 1/360 पार्ट जो होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं, डिग्री मेजरमेंट बोलते हैं। तो अभी क्या करना है कि जो रिलेशन आता है डिग्री, मिनट और सेकंड का, वो हमें करना है। तो 360 को हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, बट ऑब्वियस है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होती है, और ये जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू अगेन इट इज अ 60 सेकंड। सेकंड को हम डबल डैश ऐसे डेनोट करते हैं। तो आपको ये रिलेशन जो है वो यूनिट कन्वर्जन का आपको याद रखना है। तो पहला हमारा जो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसको हम डिग्री बोलते हैं। और डिग्री को हम कैसे डेनोट करते हैं, सपोज लाइक 1 डिग्री, तो इसको हम ऐसे डेनोट करते हैं 1 डिग्री, बिकॉज वी मस्ट नो हाउ टू डेनोट इट। समटाइम्स इट मे हैपन कि जो आपका जो मेजरमेंट का यूनिट्स होता है आपको पता नहीं चलता है कि ये डिग्री में, रेडियन में कि ग्रेड में है। तो पहला जो हमारा आता है वो तो क्या होता है कि डिग्री मेजरमेंट, राइट, दैट वी नो वेरी वेल। सेकंड क्या हमारा होता है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम मींस यू आर हैविंग वन सर्कल, राइट। सर्कुलर सिस्टम मीन बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन इट कंसिस्ट ऑफ सर्कल्स। तो सर्कुलर सिस्टम में जो हम मेजरमेंट करते हैं एंगल्स के, तो उसका जो मेजरमेंट आता है उसमें आता है रेडियन में आता है। अभी रेडियन क्या होता है, तो रेडियन क्या होता है, इट इज द एंगल सब्सटेंस बाय द लेंथ ऑफ आर्क एट द सेंटर। Are you getting or not? See, circle has a center like this, center यहाँ पे होता है, तो सेंटर से हम जो ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और यहाँ से ये भी ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं। तो इसमें जो पार्ट आता है वो 10th में आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो हमारा वो सेक्टर रहता है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है उसको हमको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, इसको आर्क बोलते हैं। आर्क बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते थे 10th में, माइनर आर्क। और ये जो हमारा है वो मेजर आर्क उसको बोलते हैं। तो ये जो आर्क है, आर्क को जो सेंटर पे यहाँ पे जो एंगल सब्सटेंड करता है उसका जो मेजरमेंट आता है उसको हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। मीन्स सपोज यू आर हैविंग 1 रेडियस, 1 यूनिट रेडियस एंड 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, देन जो एंगल सब्सटेंड होता है उसको 1 रेडियन एंगल्स हम बोलते हैं। तो उसका रिलेशन क्या होता है, रेडियन मीन्स व्हाट, रेडियंस माइट बी इन द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई के टर्म में जो आता है उसको हम रेडियन में बोलते हैं। वो हम देखते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि ये जो एंगल बनता है, एंगल क्या है एक्चुअली, दिस एंगल formed by the length of arc and this radius. So just note down this formula, theta is equal to L by R. Well, L is what? It is known as the length of arc. See, length of arc. And R stands for radius, that you know very well. So this kind of question can be asked. ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि भाई ये लेंथ ऑफ आर्क ये रेडियस है तो उसका एंगल फाइंड करो। ये जो एंगल आता है उस किस में आता है, रेडियन में आता है। Then we are going to discuss relation between degree and radian. But first we must know what is degree measurement and radian measurement, right? See, both are somewhat related. अब यहाँ पे भी हम सर्कल कंसीडर करते हैं, पर ये जो पूरा रिवोल्यूशन होता है, जो रोटेशन होता है, उसको हम डिग्री में मेजरमेंट करता है। बट दिस इज द पार्ट ऑफ, ये क्या हो, इंटरनल पार्ट हुआ ना, ये जो एंगल बनता है क्या बोलते हैं, इनसाइड द सर्कल बनता है। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एंड द थर्ड वन, दैट इज सेंटीसिमल
सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। ये रेडियन है, उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, 1/c, इस पे ये छोटा सा यहाँ c पे लिखते हैं, इसका जो मतलब होता है वो बोलते हैं रेडियन बोलते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अभी ये क्या है कि ग्रेड को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/, ऊपर यहाँ पे ग्रेड लिखते हैं। अभी ग्रेड क्या है, तो 1 ग्रेड यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90/100, ऐसा इसका यूनिट कन्वर्जन होता है 90/100 डिग्री। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90/100 डिग्री। अभी ग्रेड में से रेडियन में डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट वी विल सी। बट ये क्या होता है एक्चुअली, ग्रेड क्या होता है, 90 मीन्स राइट एंगल, तो इसको हम ऐसे भी बोलता है राइट एंगल इज इक्वल टू 100 इंटू ग्रेड, और वी कैन से राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम 90 जो सब्जेक्ट ऑफ पार्ट बनाते हैं, तो 90 मीन्स व्हाट, राइट एंगल बोलते हैं इसको, यस और नो, राइट एंगल, 90 मीन्स राइट एंगल। तो ये जो 100 है हमारे यहाँ पे मल्टीपल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहाँ से हमारा एक ग्रेड 90/100 हुआ। ऐसा इसका कैसा है वो आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा 3 जो सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, इसको हम क्या करना है, किसका व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दैट वी विल सी। अभी क्या करना है हमें, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है, इसको कैसे यूनिट कन्वर्ट करता है। आप फिजिक्स में जो स्टडी करते हैं ना, फोर्स होता है, वो फोर्स कैसा मेजर करता है, न्यूटन में मेजर करता है, और न्यूटन है उसका दूसरा भी यूनिट होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना, एम वो केजी में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं सेकंड स्क्वायर, उसको न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन से डाइन में भी कन्वर्ट करते हैं, उसका डिफरेंट यूनिट्स होता है ना। तो वैसे भी हमें ये जो एंगल मेजरमेंट का जो सिस्टम पूरा है उसमें यूनिट कन्वर्जन करना है, वो हमें सीखना है। ये आपको अगेन आई रिपीट, ये आपको याद रखना है, बाकी तो सब वो इजी होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो सिंबल है मिनट का होता है, और ये डबल डैश लिखते हैं वो सेकंड का होता है। यूनिट कन्वर्जन याद रखना। अभी ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या होता है उसका रिलेशन, ये आपको पता है। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते तो पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेशन होता है। ये जो हमारा 360 डिग्री रोटेशन होता है वो इज इक्वल टू 2 पाई होता है। पाई क्या आता है, पाई आपको पता होगा पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे हम लिखते हैं। पाई जो हमारा 10th में हम यूज करते थे उसमें हम क्या लिखते थे, पाई इज इक्वल टू 22/7 ऐसे लिखते थे, और दूसरा हम पाई इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 3.14 लिखते थे। अभी हम एंगल के रिलेशन के साथ हम पाई कंपेयर करते हैं, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगेन रिपीट, ये जो हमारा है पूरा एंगल मेजरमेंट सिस्टम है, तो जो भी आप बोलो वो यूनिट के साथ बोलना है, क्योंकि वो पता नहीं रहता ना कि डिग्री है कि रेडियन है कि ग्रेड है। ग्रेड बहुत रेयर यूज करते हैं हम, डिग्री और रेडियन यूज करते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप डिग्री में बोल रहे हैं कि रेडियन में बोल रहे हैं। तो ये हमारा जो पाई है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बोलते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, जस्ट आई मल्टीप्लाई विथ 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे 360 इज इक्वल टू 2 पाई आया। तो अभी हमें ये यूनिट कन्वर्जन करना है। ये जो हमारा इस साइड क्या है, डिग्री होता है ना, ये जो मैं 360 मैंने लिखा है वो आपका डिग्री मेजरमेंट है, और ये जो साइड हमारा वो रेडियन मेजरमेंट है। तो अभी हमें क्या करना है कि सपोज मुझे 1 रेडियन चाहिए, चलो, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री में क्या होता है, तो ये साइड रेडियन है ना, तो ये पूरा का पूरा 2 पाई में यहाँ पे ले जाता हूँ। आर यू गेटिंग और नॉट? पूरा का पूरा 2 पाई यहाँ पे ले जाता हूँ, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 रेडियन रहता है ना, क्योंकि पाई वाला जो टर्म है हमारा वो रेडियन इंडिकेट करता है। आपको याद रखना है, जो पाई वाला टर्म है हमारा वो रेडियन इंडिकेट करता है। तो अभी क्या होता है कि ये जो तो 2 नंबर है 360 डिग्री है, तो ये तो ऊपर नीचे कट होता है ना, ये तो हो सकता है। तो ये कितना हुआ, 360 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स वो क्या होता है, 180 होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई is equal to 1 radian. So that you know how to convert degree into radian and radian into degree. 1 radian is equal to 180 pi. 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। अभी हमने क्या किया, रेडियन को जो 1 रेडियन हमने फाइंड किया, अभी हमें 1 डिग्री फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आर यू गेटिंग और नॉट? सी हम ये जो सम है हम जब सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कि अभी ये यूनिट कन्वर्ट कैसे होता है। अभी तो आपको थोड़ा ये लगेगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत इजी है। अभी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, ये 360 पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा ना, क्योंकि इस साइड डिग्री है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360, यस और नो।
लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, ये 360 पूरा यहाँ पर चला गया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई बाई 180 हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ये हमारा जो हुआ रेडियन है। वैसे भी 1 डिग्री ये हमारा हुआ क्या हुआ, डिग्री होता है। तो आपको वो सिंपल सा ये लॉजिक है, आपको पता चल गया होगा कि डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, और रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करता है। बहुत सा सिंपल है, आप ये लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ वो भी। रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है कि पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट जो भी आपको दिया है वो। और डिग्री में से आपको वो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर देते हैं ना, क्योंकि ये क्या हुआ अभी, ये 2 पाई नीचे चला गया, ये यहाँ चला गया, मीन्स जो है वो रेसिप्रोकल होता है ना। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 180 बाई पाई हुआ, यहाँ पे पाई बाई 180 हुआ, वो एक्जैक्टली क्या हुआ, उसका रेसिप्रोकल हुआ। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाई पाई इंटू ये जो डिग्री है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रेडियन लिखना है। बहुत सारी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये जो हमारा, ये आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारा जो यूनिट कन्वर्जन का वो बोलते हैं हम फंडामेंटल होता है, ये हमारा बेसिक है। कि सपोज आपको डिग्री दिया है, आपको 10th में वो पता होगा कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 वो आता था, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत से सिंपल है, सपोज ये डिग्री आपका 30 आया, चलो तो यहाँ पे 30 डाल दो, यहाँ पे 30 डालो तो क्या वो 30 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, ये 0 कट हुआ, 36 जा, तो पाई बाई 6 हुआ ना। तो जो 30 डिग्री है उसको रेडियन में हम पाई बाई 6 बोलते हैं। आर यू गेटिंग? वो पूरा का पूरा टेबल है वो हम देखेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि आगे का जो हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो देखेंगे तब हम ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो पाई में कन्वर्ट कर देंगे। अभी अपने 10th में जो पढ़ा वो डिग्री में था ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, दैट वाज डिग्री। अभी उसको हम पाई के टर्म में कन्वर्ट करना है। पाई के टर्म में मतलब क्या, वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा है, यहाँ पे डिग्री डाल दो, रेडियन में आपको आंसर मिल जाएगा। सेम वे जो रेडियन यहाँ पे डालेंगे तो हमको डिग्री में आंसर मिल जाएगा। बहुत सा सिंपल लॉजिक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, बहुत से इजी क्वेश्चन, इट्स टू वी कैन से इट्स अ बेबी स्टेप। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन JEE, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बेसिक। हमारा जो बेसिक है वहां से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है JEE में नहीं पूछे थे। तो हमें क्या करना है कि जो मेजरमेंट दिए है वो आपको डिग्री में दिए है, 240, 520, 40 डिग्री एंड 20 मिनट। ये जो एक डैश है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री मिनट बोलते हैं ना। यहाँ पे लिखा है ये जो मिनट है, यहाँ पे -47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो उसको हमें क्या करना है कि डिग्री में जो दिए है मेजरमेंट उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें आंसर चाहिए रेडियन में। आर यू गेटिंग? रेडियन में आंसर चाहे तो रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखा है, पाई बाई 180 इंटू डिग्री। तो हम ये फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला पे यूज करेंगे ना, क्योंकि मैं रेडियन में आंसर चाहे ना, डिग्री तो दिया हुआ है। तो बहुत सा सिंपल है, फर्स्ट है तो रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे होता है कि रेडियन इज इक्वल टू कैसे लिखता है, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री। डिग्री मेजरमेंट हमें दिया है, कितना दिया है, 240। तो अभी क्या 240 और 180 ऊपर नीचे जो होता है वो कट होता है ना, तो हम कट कर सकते हैं। 0 कट आउट हो गया। तो अभी आंसर क्या आया, 6 के टेबल में आता ना, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा। तो बहुत सा सिंपल आंसर है 4 पाई बाई 3। तो ये हमारा 4 पाई बाई 3 है मित्रों, ये क्या होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट, और ये हमारा क्या होता है डिग्री मेजरमेंट। तो दोनों इक्वल ही है। ये जो हमारा यूनिट है वो डिग्री में होता है, ये जो हमारा आता है रेडियन में होता है। सो यू कैन राइट लाइक दिस 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है हमें आगे जाके वो फाइंड करनी है टेबल में से। हमारे टेबल में तो सम नॉन वैल्यू है, 0 है, 30 है, 45, 60, 90, वही वैल्यू हमको पता है। Suppose someone ask you find the value of 75 डिग्री, 75 like sin 75 बोल रहे हैं, तो 75 वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे पाई इन टर्म्स ऑफ पाई, और वो यूनिट कन्वर्जन देखेंगे आगे। तो अभी क्या हुआ कि 240 डिग्री है, उसका रेडियन में कन्वर्जन कितना हुआ, 4 पाई बाई 3। सिंपल सी फॉर्मूला है, जस्ट आई पुट इट। सेम वे 520 उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, पाई बाई 180 जस्ट मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है। पाई बाई 180 इंटू 520। अभी जो जीव है ऊपर नीचे वो कट होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो हमें करना है। बाकी तो कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कुछ आता है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अभी ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं है ना, 52 है और 18 है। अभी 2 के टेबल में आता है, 26 2 जा 52 होता है। अभी ये 9 जा होता है, तो ऊपर नीचे कट नहीं होता ना, तो 26 पाई बाई 9। सो दैट इज द वैल्यू इन केस ऑफ रेडियन। ये डिग्री वाला है और ये रेडियन वाला है, सिंपल है। तो रेडियन वाला जो भी आता है हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाई।
कि पाई के फॉर्म में जो आता है वो रेडियन मेजरमेंट होता है, ऐसा हमें याद रखना है, बहुत सिंपल है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, ये तो पूरे पूरे का फुल डिजिट है, तो उसको मैं डायरेक्टली पाई बाय 180 कर दिया, ऊपर नीचे कट हो गया, आंसर आ गया। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी ये क्या दिया हुआ आपको, 40 डिग्री दिया है और 20 सेकेंड दिया है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि 40 इंटू 20 इंटू पाई बाय 180 ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि ये दोनों का सिस्टम अलग है। ये देखो डिग्री में और ये आपका मिनट में है, तो पूरा का पूरा नंबर पहले डिग्री में होना चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? पूरा का पूरा नंबर ये जो आपका है वो डिग्री में होना चाहिए, बाद में उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होता है वो आपको यूनिट कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको देखा होगा। ये क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये जो मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 डिवाइड होता है ना, क्योंकि ये छोटा वाला है, छोटे में से बड़े में जाता है तो डिवाइड करना होता है, और बड़े में से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। इट्स टू सिंपल, ऐसे ही हम याद रखेंगे, बहुत इजी है। सपोज सी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितने बोलते हैं हमें, 1000 मीटर बोलते हैं ना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो हम बोलेंगे 5 किलोमीटर कितना मीटर हुआ, तो 5 किलोमीटर मीन्स 5 इंटू 1000 करते हैं ना। तो किलोमीटर बड़ा है और मीटर क्या है वो छोटा होता है, तो किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करता है। तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स पोजीशन होता है भाई, मीटर में से किलोमीटर में जाता है तो उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है मिनट छोटी है और डिग्री है वो बड़ा है, तो छोटे में से बड़े में जाते तो क्या करना है, डिवाइड करना है। रिलेशन तो 60 का ही है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 20 है डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा। ये क्या हुआ, ये यहाँ पे कट हो गया, ये 2 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ 40 इंटू 1/3, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आर गेटिंग और नॉट? ये जो हमारा मिक्स नंबर, इसको मिक्स नंबर बोलते हैं, यहाँ पे हम प्लस करते हैं। ये जो हमारा, क्योंकि ये फुल पार्ट है और ये हमारा है जो आधा पार्ट है, आधा को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसा नहीं करता। 40 इंटू 1 40/3, यहाँ पे 40 है ना, ये 1/3 आया, तो 40/3 ऐसे नहीं लिखते, ये हमारा मिक्स नंबर होता है, क्योंकि ये फुल पार्ट है और इसका आधा है। तो अभी हम इसका क्या करना है, बहुत सा सिंपल आंसर है। 40 इंटू 3 कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता है? 4 3 12 होता है, 120 और ये इसका प्लस होता है, मिक्स नंबर आप 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, बहुत सा इजी है। तो ये क्या हुआ, 121 डिवाइड बाई 3 हुआ। ये पूरा का पूरा जो नंबर है, अब ये नंबर आपका डिग्री में आ गया। आर यू गेटिंग और नॉट? ये 121/3, ये हमें जो डिग्री सेकेंड हुआ था उसको मिक्स कर दिया डिग्री मिनट का, ये डिग्री है, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, पाई बाय 180। तो अभी इसका आंसर क्या है, ऊपर नीचे कुछ कट तो होता ही नहीं ना, 2 1 3 ने 4 तो 3 के टेबल में आता नहीं, कि 3 से कट नहीं होगा और इससे भी कुछ कट नहीं होने वाला है। तो आंसर क्या है आपका 121 पाई डिवाइड बाय 18 3 कितना 54 होता है ना, तो 540। ये आपका जो आंसर आया वो किस में आया, रेडियन में। आपको यहाँ पे लिखना है कि ये आपका रेडियन है, तो आपको वो पता चलेगा एक्चुअली क्या है। तो ये डिग्री और मिनट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं भाई, बहुत सा सिंपल आंसर है। तो ये भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ साइन का प्रॉब्लम रहता है। चलो ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो जो इसमें जो करते हैं वही इसमें करना है। बस फर्क क्या है कि इसमें जो माइनस साइन वो एज इट इज रखनी है हमें, उसका कुछ यहाँ पे वो मीनिंग नहीं बनता है, तो माइनस हम ऐसे ही रखते हैं। ये 47 ऐसे हुआ, तो अभी इसमें क्या करता है कि वो 30 है, वो क्या होता है, मिनट होता है, उसको डिग्री में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 6 करेंगे, ये हो गया, ये 1/2 आ गया। तो अभी क्या है ना, माइनस हम बाहर ही रखेंगे भाई, 47 इंटू 1/2 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ये हमारा मिक्स नंबर हो गया भाई। जो ये गलत होने नहीं चाहिए। समटाइम्स इन हरी वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 47 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, ऐसा नहीं होता है भाई। ये तो डिग्री होता है और मिनट होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी इसमें कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 47 इंटू 2 कितना होता है भाई, 94 होता है ना। 47 इंटू 2 94, 94 प्लस 1 कितना हुआ भाई, 95/2। ये हमारा जो आंसर आया, ये आया हमारा डिग्री में। ये मैंने क्या किया, ये डिग्री और मिनट को पूरा कॉम्बिनेशन करके पूरा का पूरा जो है वो मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, ये जो डिग्री मेजरमेंट है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है भाई। तो सिंपल सा आंसर है भाई, इंटू पाई बाय 180 कर दो। ये जो आंसर आया उसको पाई बाय 180 कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मीन्स पाई बाय 180, बहुत सिंपल सा है। अभी आपको ऊपर नीचे कुछ कट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट 95 पाई डिवाइड बाई 18 2 36 360। ये जो आंसर हमारा है वो किस में है, रेडियन में।
तो आपको जो पता होना चाहिए कि माइनस आंसर वो उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जो हमने ये स्टार्टिंग में देखे थे उसका मीनिंग ये रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो साइन इंडिकेट करता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है कि एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया है। क्योंकि ये आपको पता रहता है कि ये जो डिग्री में है तो वो तो हम डिग्री में मेजर करते हैं ना, ये एंगल जो है डिग्री में मेजरमेंट करता है। नेगेटिव आया उसका मतलब क्या हुआ, वो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज में उसका नेगेटिव आंसर आता है ना। तो वही सिंपल सा लॉजिक है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये साइन कन्वर्जन दिस इज जस्ट फॉर टू पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको, एंगल मेजरमेंट की लैंग्वेज में हम समझते हैं। तो ये हमारा हुआ डिग्री टू रेडियन मेजरमेंट। अभी ये सेम क्वेश्चन रेडियन है, उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हुआ ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाई बाई 180 लिखते हैं ना, तो उसको हम क्या कन्वर्ट कैसे करेंगे, 180 बाई पाई लिखते हैं। तो चलो ऐसे कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर बाद में हम थोड़ा आगे जाएंगे। आपको इसमें जो मैंने अभी समझा है उसमें क्या याद रखना है, एक आपको जो यूनिट कन्वर्जन का ये है वो आपको याद रखना है कि डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, ये रिलेशन आपको याद रखना है, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 180 पाई इंटू रेडियन। और थर्ड, ये जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है, ठीक, एंगल ऑफ मीन्स रेडियन, ये जो हमारा आता है रेडियन में आता है ना, क्योंकि ये यहाँ से हमने लिया है, सर्कुलर सिस्टम में से लिया है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल डिस्कस। यहाँ पे हम आगे जाते हैं, ये हमने क्या किया डिग्री से रेडियन में, अभी हम क्या जाएंगे रेडियन से डिग्री में। ओके बच्चों, तो हम आगे देखते हैं अभी क्या करना है कि हमें जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्या देखा था, डिग्री जो मेजरमेंट आपको दिए थे उसको रेडियन में कन्वर्ट करते थे। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सा सिंपल लॉजिक था भाई, इंटू 1 बाई पाई इंटू पाई बाई 180 कर देते, जो भी हमको दिया है उसको मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 करते थे, तो हमारा आंसर आ जाता था। अभी हमें क्या करना है कि रेडियन जो है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना आता है। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करता है, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। तो आपका जो 6 रेडियन है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 करेंगे कि 180 बाई पाई करते थे, उसमें पाई बाई 180 करते थे ना डिग्री में। अभी हम क्या करेंगे उसका उल्टा, 180 बाई पाई करते हैं, उसको हम क्या करते हैं 180 डिवाइड बाई पाई। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर इसमें रेडियन में तो पाई आता है, तो अभी पाई की वैल्यू में कैसे अभी पुट करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सा सिंपल है। पाई हमें जो हमें रेडियन में से डिग्री में जब जाएंगे तब पाई हमें क्या लेना है 22/7 लेना है। अभी इसमें ये क्योंकि नंबर में कन्वर्ट हो जाता है ना 22/7, क्योंकि ऑलरेडी वो रेडियन में तो है ही, तो रेडियन में तो हम पाई लेते ही है ना। तो दूसरा पाया है तो उसमें हम कैसे लिखते हैं उसको 22/7 लेना है आपको। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो ये 6 आपका एज इट इज होता है 6 इंटू 180। अभी पाई होता है आपका 22/7, तो 22/7 ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। बहुत सा सिंपल लॉजिक है। अभी ऊपर नीचे कुछ कट होता है तो कट करेंगे। अभी ये जो होता है कि आपके 2 का टेबल में 2 3 जा होता है, इसमें ये क्या होता है 11 जा होता है ना, और 11 से ऊपर तो कट नहीं होता है ना। तो ऊपर क्या आंसर आया पर न्यूमरेटर में 7 इंटू 3 21 होता है, इंटू कितना होता है 180 डिवाइड बाई क्या आता है आपका 11। तो ऊपर जो आता है वो उसका मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आएगा, अभी सॉरी अभी जो आपका उसका 21 इंटू 180 आता है उसका आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 11 करना है। ऊपर नीचे कुछ कट तो भी होता है नहीं, न्यूमरेटर में कुछ कट नहीं होता है। तो ये आपका आंसर डिग्री में आ गया ना। आई जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट, लेकिन डिग्री में क्या आता है वो आंसर आता है वो रेशनल नंबर में आता है, तो फ्रैक्शन में आएगा ना। तो उसको हमें कैसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंसर है आपका डिग्री में तो आ गया चलो, लेकिन डिग्री में क्या है फ्रैक्शन में आया। तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। ऐसे हम आपको आगे आगे पार्ट करने पड़ेंगे। तो अभी ऊपर हम क्या करेंगे 180 इंटू 21 उसका मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है 180 इंटू 21 कितना होता है, जस्ट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6173780 होता है। तो अभी उसका आंसर क्या है भाई 3780 डिवाइड बाई 11 है। जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया भाई, 180 इंटू 21 किया, क्योंकि पीछे 0 तो लगाना ही पड़ेगा ना। इसको 378 आता है उसका मल्टीप्लीकेशन। अभी हमें क्या करना है कि ये जो नंबर आया वो आता है रेशनल नंबर में आया, मीन्स आपका जो परफेक्ट मीन्स वो फुल नंबर नहीं आया, होल नंबर नहीं आया। तो ये डिग्री में तो आ गया, लेकिन ऐसा हम थोड़ी ना बोलेंगे 3780 डिवाइड बाई 11 डिग्री, ऐसा नहीं बोलते ना। उसको हम डिग्री मिनट सेकंड में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी ये जो आपका रेशनल नंबर है उसको आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मिक्स नंबर में। मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है, बहुत सा सिंपल लॉजिक है भाई। आपका 3780 मैं अपने यहाँ प्रोसेस करके दिखा रहा, आपको वो पता चल जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। तो 11 3 33 होता है, ये सब वो नॉर्मल जो करता है वही कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो 11 4 44 होता है भाई, यहाँ पे 4 बचा, ये आया 11 3 33 अगेन होता है, तो यहाँ पे 7 बचा ना, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 343 पॉइंट समथिंग आया ना।
तो अभी हमें क्या करना है कि ये इसको मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, जो हमने वो यूक्लिड थ्योरम पढ़ा होगा, आपको वो पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है क्या नहीं, वही मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अभी ये क्या करना है, इसको दोनों डिनोमिनेटर में तो 11 है ही, चलो ये जो आपका वो यहाँ पे आएगा 343, अभी रिमाइंडर जो बचा वो यहाँ पे लिखना है। चलो बहुत सा इजी है। अभी ये जो रेशनल नंबर्स को मिक्स नंबर में ऐसे कन्वर्ट करता है, बस कुछ नहीं है, जो डिवाइड करता है वो तो डिवीजन में आएगा, अभी जो रिमाइंडर बचा वो आपको ऊपर लिखना है, बस ये जो फुल नंबर आता है वो आगे लिखना है। तो उसका इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 343 प्लस 7/11, दोनों का मतलब एक ही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई प्लस ही करना है, आफ्टर ऑल तो वही करना है हमें। आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करके +7 करो, यही आंसर आएगा, वो तो कंफर्म ही है। तो उसमें जो मैंने सिर्फ मॉडिफाई किया है, कुछ चेंज नहीं किया है, अपने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया है, जो नॉर्मली जा रहा है भाई। अभी क्या हुआ, ये 343 में हुआ, वो आपका फुल डिजिट हुआ भाई, तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हुआ, डिग्री तो आई पूरा का पूरा डिग्री है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन पार्ट हुआ उसको हमें क्या करना है, अभी डिग्री का छोटा यूनिट क्या होता है, मिनट होता है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो हमें क्या करना है कि जो आंसर हमारा आता है 7/11, उसको हमें जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो पार्ट है वही है, ये तो पूरा का पूरा डिग्री में ही है भाई, ये जो पार्ट है छोटू वाला पार्ट, वो पार्ट आपका डिग्री में से मिनट में कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग और नॉट। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, अभी क्या आता है उसमें 343 प्लस, अभी तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये छोटा वाला पार्ट है ना, उसको 60 मल्टीप्लाई किया, इसमें ये क्या हुआ आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 6 7 कितना होता है, 42 होता है ना भाई, 42 डिवाइड बाई 11, ऐसा आया कि नहीं आया। तो ये पार्ट आपका जो आया वो मिनट में आया भाई, ये आपका पार्ट कैसा है, मिनट में आया। चलो तो मिनट आया, अगेन इट इज अ रेशनल नंबर है, तो अभी उसको भी हम ऐसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और मिनट का छोटू क्या होता है, सेकंड होता है ना, तो फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जो प्रोसेस हम किए फिर से वही प्रोसेस करना है भाई यहाँ पे। तो अभी 420 डिवाइड बाई 11 करेंगे, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना भाई। तो 420 डिवाइड बाई 11 क्या होता है, 11 4 जा 42 नहीं चलता ना भाई, 11 3 जा 33 चलता है भाई, ये सुन लो। तो अभी 42 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना 7 2 9 होता है ना, 9 बचा भाई। तो 90 11 8 जा 88 होता है कि नहीं होता है भाई, तो 2 ही बचा भाई। तो ये आपका रिमाइंडर बचा कि नहीं, आगे कट नहीं करना है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ 343 आपका डिग्री हुआ। अभी इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, ये जो हमारा 420 डिवाइड बाई 11 कैसे लिखते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर उसमें 11 तो लिखना ही है, इसका मल्टीप्लाई ऐसा होता है। तो 38 यहाँ पे लिखते हैं, और रिमाइंडर जो बचा वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। बहुत साइज है, जो ऊपर किया वही करना है अभी। तो इसमें क्या हुआ है, जो फुल डिजिट आपका आया, फुल नंबर आया, वो किस में आया, किस में आया भाई, डिग्री में नहीं होता ना भाई, इसको मिनट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये मिनट में आता है। तो आपका आंसर क्या आया 343 डिग्री, ये जो आपका है 38 क्या हुआ, मिनट हुआ। अभी ये बच्चों ये क्या हुआ 2/11 आया। चलो ये इसका क्या है, ये आपका मिनट का छोटू है। यहाँ पे क्या हुआ था, डिग्री का छोटू हुआ था ना, ये उसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया। अभी मिनट का छोटू है, उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बहुत सा इजी है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है भाई। तो ये हमारा 343 डिग्री हुआ, 38 मिनट हुआ भाई। तो 6 2 कितना होता है भाई, 12 होता है ना। तो 120/11 इसको फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स नंबर में ना, तभी तो हमें आंसर आगे मिलेगा। तो वो तो हमारा है रेगुलर, 120 डिवाइड बाई 11 कितना, 11 जा यहाँ पे 10 हुआ ना, 11 जा पार्ट नहीं चल रहा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 110। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, 343 डिग्री हमारा फुल है। अभी 38 ऐसा हुआ, तो 120/11 कितना हुआ, 11 × 1 11 होता है। कुछ गलत है कि नहीं है भाई, नहीं सही है ना, क्योंकि ये पर 10 हुआ, तो भाई ये तो कट नहीं होगा भाई। तो ये पूरा का पूरा 11 तो नीचे ही आएगा, 11 × 1 आया, तो 1 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा। ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, 11 1 जा 11, 11 + 10 नहीं होता है। तो इसमें कुछ गलत हो रहा है भाई, क्योंकि ये 11 1 जा 11, 11 + 10 कितना आता है, 21 होता है ना, तो 120 होता है। अभी कुछ गलत चल रहा है भाई, क्या गलत हो रहा है, आपको कुछ नजर आ रहा है कि नहीं। इसमें 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है ना। तो 12 0 का 0 वो तो सही है। 120/11 क्या हुआ, 11 1 जा 11, तो 10 बचा, ऊपर से कुछ कट ही नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि 11 है 10 है, कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो वो तो सही था ना, कि एक दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर करेंगे वही आंसर आएगा, यहाँ पे नहीं आता है, तो ये गलत हुआ है।
तो यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, मीन्स जीरो चल रहा है ना पार्ट, तो कुछ जीरो 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 11 इंटू 10 कितना हुआ, 110 हुआ ना, उसमें ये ऐड करेंगे तो आ गया कि नहीं आएगा। 11 इंटू 10 कितना हुआ, 110 होता है, उसमें 10 ऐड करता है 120 आएगा ना, क्योंकि जीरो तो लिखना चाहिए ना, क्योंकि आगे पॉइंट में आंसर आएगा तो 10 लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 10 आया। चलो, कभी कभार ऐसा होता है। अभी क्या हुआ मित्रों, ये जो हमारा कन्वर्ट हुआ वो कितना सेकंड में हुआ ना, ये पूरा का पूरा डिजिट ये सेकंड है और इसका छोटू है, तो आगे सेकंड का छोटू कुछ नहीं आता है अगर, तो राउंड अप करके फिगर हमारा कितना आता है, 348 डिग्री हुआ। और ये वाला छोटा हमारा मिनट है भाई, गलत से लिख दिया, ये वाला मिनट है, 38 हमारा मिनट होता है। और ये जो 10 है, 10 हमारा क्या हुआ भाई, ये हमारा हुआ सेकंड हुआ। राउंड अप करके मैंने लिया है क्योंकि आंसर 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना। आगे आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ऊपर से जीरो आता है, आपको वो पता है, 11 9 99 होता है ना, तो 10.9 आया कि नहीं आया। 10.9 मीन्स राउंड अप करके आपको यहाँ पे 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10.9 आता है तो उसको हम 11 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 10 भी लिख सकते हैं 11 भी लिख सकते हैं, दोनों राइट ही है। तो ये हमारा बच्चों क्या हुआ, रेडियन में से हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, तो इसका आंसर हमें ऐसे लाना है। ऐसे 3780/11 आंसर आके वो छोड़ना नहीं है भाई, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है π/64। अगेन आई रिपीट, आपको जो रेडियन में से डिग्री में जाना है तो क्या करना है, 22/7, पाई की जगह आपको 22/7 ही लिखना है भाई। तो ये हमारा क्या हुआ, रेडियंस है। ये हमारा जो आंसर है वो रेडियन में है, उसको मैं कैसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। चलो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। इसको हम लिखेंगे π/64, ये हमारा रेडियन है, सॉरी, π/64 जो आता है रेडियन में आता है, उसको हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180/π मल्टीप्लाई करके, तो 180/π मल्टीप्लाई किया। चलो अभी ये तो पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, पाई की वैल्यू तो सेम ही है। आप 180 लो या 22/7 जो भी आपको ले, लेकिन हमें लेना ही तो 22/7, तो वो तो कट ही हुआ। तो अभी उसमें क्या है, आंसर क्या है भाई इसमें, तो इसमें आंसर आया 180/64 आया। चलो तो ये हमारा डिग्री में आंसर आ गया है। चलो इसमें कोई आपको डाउट है कि नहीं है, कुछ नहीं है भाई, इसमें तो नॉर्मल है, पाई तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अभी ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके हमें डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट तो करना ही है। ओके, तो 180/64 कौन से नंबर से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, वो तो छोटू वाला है ना। 4 से कट करेंगे, 4 से होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा 12 होता है कि नहीं होता है, 4 4 जा 14 होता है, तो 4 आएगा, फिर 14 आएगा, 4 5 जा 20 आता है, तो 4 जा से चलेगा, 4 4 जा 16, 2 बचा तो 45, ऊपर 45 आएगा, नीचे 4 से कट करेंगे कितना हुआ, 4 1 जा 4, 2 बचा 24, 4 6 जा 24, तो 45/16 आया भाई। उसको कट करके हमें 4 से कट करके इसका आंसर है, ये हमारा डिग्री में है भाई। तो इसमें हमें कैसे करना है, मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते थे हम, तो आपको पता ही है, जो नंबर है आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है भाई। तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आता है भाई, तो यहाँ पे 16 तो नीचे आएगा, 16 2 जा कितना होता है 32, 16 3 जा 48 होता है, तो 2 से ही पार्ट चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 45 है भाई। आर यू गेटिंग और नॉट, तो 16 2 जा 32 यहाँ पे 45 है, 32 में कितना ऐड करेंगे तो 45 आएगा। ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, 32 में आप कितना ऐड करेंगे तो 45 आता है भाई। यहाँ पे 32 है 45, कितना ऐड करेंगे इसमें, तो सिंपल सा है 13 ऐड करेंगे ना, तो ये हमारा ऊपर 13 आ गया। तो ये 2 है जो हमारा डिग्री आया, पूरा का पूरा नंबर, जो पूरा नंबर आगे आता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। और ये जो पार्ट है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे जो आया था हमारा डिग्री आया था ना, ये छोटू वाला पार्ट आता है फ्रैक्शन पार्ट, उसको मैं डिग्री से छोटा क्या होता है मिनट, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है, ये जो आपका जो पार्ट है उसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ही कट कर दे, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से कन्वर्ट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, अगेन वो 2 से कट करेंगे तो 15 2 आता है, यहाँ पे 4 आता है, तो ऊपर क्या आया 15 × 13 आया। चलो थोड़ा 2 डिग्री होता है, 15 × 13 कितना होता है भाई, यहाँ पे कर देते, कुछ रफ वर्क यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ही कर देता हूँ भाई, वो तो आपका पार्ट ही है, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 3 45 होता है, 195 हुआ, तो ऊपर आया 195 और नीचे डिनोमीटर में क्या है भाई 4 है। तो ये जो हमारा पार्ट है भाई, वो मैं 60 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो मिनट में आता है भाई, ये हमारा मिनट वाला पार्ट है। तो मिनट को भी ऐसे हम नहीं लिखते ना, उसको भी हम परफेक्ट नंबर में, ये सही नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, वो पूरा का पूरा डिजिट आना चाहिए। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे भाई, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको तो पता ही है भाई, 2 डिग्री आपका है, 4 से इसको डिवाइड करना है बस, 4 तो नीचे आएगा ही, 4 4 जा 14 होता है, 4 5 जा 20 होता है, तो 4 से ही चलेगा ना, 4 4 जा 16 और इसमें 3 बचे 35, तो 8 जा चलेगा ना, 4 8 जा 32, तो 3 बचा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ भाई, ऐसा कुछ मैं वो नहीं कर रहा हूँ भाई, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अभी ये क्या हुआ, 48 जो आपका पूरा का पूरा मिनट में आ गया, तो 3/4 है, उसको हम फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 60 मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर नीचे यहाँ पे कट होगा भाई 2 जा, और यहाँ पे 30 होगा ना, तो 15 4 जा डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं, 15 3 जा कितना होता है 45, तो वहाँ तक कुछ डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं भाई, ये तो कट हो गया। तो 2 डिग्री 48 मिनट, और यहाँ पे क्या है 15 है ना, 15 3 जा कितना था 45 सेकेंड, तो ये आपका आंसर आ गया अभी। चलो, तो ये जो π/64 है वो आपका रेडियन में था, रेडियन को आपने क्या किया, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके पास भी वो बुक्स होगी तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ वाला कुछ क्वेश्चन नहीं है। एक आपको ये न्यूमेरिकल दिया है और उसको आपको ये जो आपका थीटा रेडियस और लेंथ, मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रेडियस है, वो उसको सर्कल है, उसके रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायरेक्टली आई विल जस्ट रिटर्न द गिवन डेटा, रेडियस है आपकी वो 3 सेंटीमीटर है, और एंगल सब्टेंड बाय द लेंथ ऑफ आर्क एट द सेंटर, वो थीटा आपको 30 दिया है। तो ये 30 डिग्री दिया है, उसको आपको क्या करना है, उसमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो तो पता ही है आपको, थीटा इज इक्वल टू L/R, हमने अभी रिसेंटली वो डिस्कस किया है, थीटा इज इक्वल टू L/R। लेकिन यहाँ पे जो थीटा आता है भाई वो डिग्री में दिया है, चलो ये दिया है कि नहीं दिया है, और यहाँ पे जो थीटा आता है वो आपको किस में लिया था, आपको पता है, वो यहाँ पे फिगर मैंने ड्रॉ की थी, और एंगल सब्टेंड बाय द आर्क वो हमने सेक्टर किया था, पता है ना, तो वो हमने रेडियन में लिया था। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिग्री वाला पार्ट है उसको आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे डायरेक्टली थीटा 30 पुट नहीं करना है, 30 पुट नहीं करना है, क्योंकि ये जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है, तो रेडियन में ही आंसर लिखना है आपका। क्योंकि कब कभार कैसा होता है, वो आपको गलती से आप वो 30 यहाँ पे पुट कर देते हैं और लेंथ ऑफ आर्क सीधा सा आंसर है भाई, थीटा इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, ऐसा नहीं होता है भाई, ये पूरा रेडियन में होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करके ही लिखना है आपको। तो आपका थीटा वो 30 है, तो 30 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी किया ना, ये रेडियन वाला डिग्री में 180/π किया, उसका उल्टा कर दो भाई, तो π/180 कर दो ना। और आपको तो पता ही है, डिग्री वाला टेबल याद आया, वो 10th में करते हैं, 0 30 45 वाला यही है, 30 को हम π/6 लिखते हैं, देखो 3 6 होता है कि नहीं होता है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन लिखते हैं। पाई आपको तो पता ही है 22/7 होता है, क्योंकि रेडियन में आपको पाई 22/7 ही लेना है भाई। तो आपका थीटा क्या आया, π/6 आया कि नहीं आया, π/6, आर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू L, क्योंकि मैं लेंथ ही फाइंड करनी है भाई, बाकी सब तो दिया हुआ है। तो पाई आपका कितना हुआ 22/7, और ये डिनोमीटर में 6 है ही है, ऊपर रेडियस कितना दिया हुआ है 3, तो बहुत सा सिंपल है, 3 2 जा 6 और 3 11 जा, तो आपकी लेंथ है वो कितनी आई भाई 11/7 आया कि नहीं आया। तो आपको ये कट करना है, 7 1 जा 7 होता है, 1.57 आंसर आएगा आपका, वो सेंटीमीटर में दिया है तो आपको यूनिट भी मेंशन करना पड़ेगा भाई। तो आपका लेंथ ऑफ आर्क है 1.57, ये छोटा वाला क्वेश्चन है भाई, इतना वो लॉजिक नहीं है, बस आपको ये जो मेजरमेंट है वो याद रखना है, वही तो हमारा टॉपिक है आज का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे थे, हमें डिग्री और रेडियन उसका जो गेम है पूरा का पूरा। तो ये रेडियन है, उसको मैं डिग्री में पहले डिग्री में दिया हुआ था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो आपकी फॉर्मूला है वो थीटा उसमें बाय डिफॉल्ट रेडियन में ही है भाई, तो रेडियन ही पुट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये रिलेशन वैलिड होगा, वरना तो होगा ही नहीं। और ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या आएगी, एक आपका क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन एपी। एपी सीरीज आपने पढ़ी होगी, आपको पता है एपी में क्या होता है, ये एंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 होता है ना, तो 3 एंगल होते हैं, हम कैसे लेट करते हैं उसका 3 एंगल्स, ऐसे लेट करते थे ना, आपको याद होगा a - d a + d, जो 3 टर्म्स है एपी में वो ऐसे ही हम लेट करते थे, a1 a2 a3 ऐसा नहीं लिखते हैं, वो 3 हम ऐसे ही एज्यूम करते थे एपी में है, तो एपी में तो ऐसे ही एज्यूम करते हैं। आगे, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, लिस्ट मीन्स जो छोटा वाला है, पूरा का जो नंबर में लिस्ट होता है वो छोटा वाला, मिनिमम जो वैल्यू होता है उसको लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट इज एज 60 as पाई। तो हमारा लिस्ट क्या होता है, ये होता है हमारा लिस्ट, और मैक्सिमम हमारा ग्रेटेस्ट क्या होता है, ये होता है। तो इसका जो रेशियो आपको दिया हुआ है 60:पाई, लेकिन उसमें कंडीशन दी है, लिस्ट वाला है वो तो सी के, चलो a - d होगा, और सेकंड थिंग a और d 2 वेरिएबल्स है, दोनों अननोन है भाई,
तो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो आपको तो पता ही है भाई, ट्राइंगल्स दिया हुआ है आपको, तो ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल ऑफ 3, जो 3 एंगल्स है उसका समेशन क्या होता है भाई, 180 होता है कि नहीं होता है? तो वही करेंगे, ये हमारा 3 एंगल्स हमने एज्यूम किया है, वही एंगल में फाइंड करना है। चलो तो हम क्या करेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये 3 एंगल्स है उसका समेशन कितना होता है ट्राइंगल में, 180 होता है कि नहीं होता है? तो ये आपका कितना है, 3 टाइम्स आएगा, 3 नीचे जाएगा, 360 हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्योंकि डी डी तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। तो आपका जो नंबर है एंगल से क्या हुआ है, ये आपका 60 है भाई, तो 60 माइनस डी, ये हमारा 60 है, चलो, और ये हमारा 60 प्लस डी, ये सभी एंगल है वो हमें डिग्री में लेना है भाई, क्योंकि इसमें दिया है एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन एपी द नंबर ऑफ डिग्रीज, ये सभी डिग्रीज में दिए हुए हैं। और हमें करना क्या है कि आपको जो रेशियो दिया है लीस्ट और ग्रेटेस्ट का, और ग्रेटेस्ट है वो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। तो हम ऐसे लिखते हैं 60 माइनस डी, ये आपका लिस्ट, डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट, ये आपका 60 प्लस डी। ये जो आंसर है आपका डिग्री में आता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है, और रेशियो हमको दिया है 60:पाई। बस कुछ नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपको बहुत डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा, उसमें कुछ लॉजिक वाला नहीं है भाई, जो दिया है वही मैंने लिखा है, ऐसा कुछ लॉजिकल सम भी नहीं है, क्योंकि ये रेडियन में दिया होता तो रेडियन में मैं कन्वर्ट कर दिया। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अननोन क्या है, डी है ना, डी एक ही अननोन है भाई, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो डी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा तो सॉल्व करो। चलो अभी कुछ नहीं है भाई, ये 180 हमारा ये क्या डिनोमिनेटर में अब जाएगा ना, है कि नहीं है, और पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे 6 3 हुआ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, डायरेक्टली आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस। हाँ, अब 180 अब गया, 0 0 कट 6 3 वो 3 यहाँ पे वो नीचे आ गया, चलो यहाँ पे आ गया, है कि नहीं है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा डी मिल जाएगा, 3 यहाँ पे ले लो भाई, तो 3 क्या हुआ, 6 3 कितना था, 18 होता है ना, 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है भाई, तो अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3d यहाँ पे चला गया, चलो 4d हो गया भाई, ये 60 यहाँ पे आएगा, 180 माइनस 60 कितना हुआ, 120 हुआ कि नहीं हुआ। तो डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस क्या है, हमारा डी है ना, डी हमारा क्या है, डिफरेंस है इसमें, क्या हुआ 30 आया कि नहीं आया, 4 3 जा, तो डिफरेंस यहाँ पे पुट कर दो भाई, डिफरेंस आपका 30 यहाँ पे पुट कर दो, 60 माइनस 30 कितना हुआ, कितना हुआ भाई, 60 माइनस 30 30 हुआ कि नहीं हुआ, वो डिग्री में आया भाई, यहाँ पे तो 60 है ही बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे 60 प्लस डी, 60 प्लस डी कितना हुआ, 90 हुआ। तो आपको जो 3 एंगल्स फाइंड करने थे, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री है, डिग्री में आपको 30 60 और 90 मिला। क्वेश्चन बहुत सा इजी है बच्चों, उसमें कुछ लॉजिक वाला कुछ क्वेश्चन नहीं है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, वो ट्राइंगल्स में हम बेसिक अंडरस्टैंड करना था, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो बेसिक में आपको समझ में आया है। अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसमें से छोटे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे के लेक्चर में थोड़ा लेवल राइज करके जो यूनिट कन्वर्जन है उसके सम करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन है वो रीड करेंगे। और आपको वो एक मैं क्या बोलता प्री रिक्वेस्ट देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर आप जब लर्न करेंगे उससे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो 10th चैप्टर था 10th में, वो आपको एक बार लर्न करना है, वो लर्न करके आना है, फिर बाद में आपका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।